Welcome back to our online class. Today we will learn the first poem from First Flight, that is Dust of Snow. It is one of the beautiful poems written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was born on 26 March 1874 in San Francisco and died on 29 January 1963 in Boston, United States. He was a very famous poet and he got number of Pulitzer Prize, or it is one of the greatest award for literature. He got 4 times this Pulitzer award. Then he got an admiration from the President of America, from John F. Kennedy, and he himself, John F. Kennedy or the President, invited him as a chief guest in one of his meetings, and in his speech he honored famous poet Robert Frost. ये क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, फेमस पोएट है. वो अमेरिका में जो 26 मार्च 1874 को जन्म हुआ है, वो बहुत सारे पोम्स लिखा है, बहुत अच्छा एक राइटर है और इवन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी उनको ऑनर्ड किया है. वो पुलिट्जर अवार्ड 4 टाइम्स उनको पुलिट्जर और लिटरेरी अवार्ड मिला है. वो हिज poems are romantic poems. Romantic in the sense is not romance, जो मूवी में वगैरह देखते हुए रोमांस नहीं है, ये रोमांटिक पोएट है. रोमांटिक का मीनिंग है रोमांस और लव ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स. नेचर का कैसे लव है इंसान के ऊपर, उसका बारे में लिखते हुए पोएट है, इसलिए रोमांटिक पोएट कहते हैं. और नेक्स्ट वन से POEM, or pronunciation is poem only. E is silent here. It is in the phonetic. E is silent. POEM, poem is the pronunciation. Now we can see the dust of snow. See in the name itself, dust of snow. It is not only the meaning of some of the dust. It is the particles of snow. See, it is the particles of snow. Meaning of the name is particles of snow. Now before we are entering the poem, we have to suppose that 3 things in the poem. Say in this poem, one tree is mentioned, that is a hemlock tree. Say hemlock, specialty of hemlock tree is it is a poisonous tree and it has white flowers, small flowers and seeds. It is a poisonous tree. Or next, one more thing is that is crow. Say crow is not a sweet bird, we know that one, black color, और एक raven है, कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर dead body है, वहाँ पर हमारा crows को दिखाई देते. तो it is one of the bad omen. Or next thing is that the Robert Frost itself, the writer itself, the poet itself, he is sitting under the hemlock tree. तो ये 3 थिंग्स है. एक तो हेमलॉक ट्री है, पॉइजनस ट्री, और सेकंड वन क्रो है, और थर्ड वन है पोएट. ये तीनों कहाँ पर, जैसे क्रो ट्री में बैठा है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलो द ट्री यहाँ पर बैठे हैं. और say 3 things are there, you can imagine that 3 things. Then we can go to the poem. Say we know that one poem has literary meaning as well as deep meaning or inner meaning. First of all, we can see the word meaning of the poem. See 2 stanzas only brief poem, 8-line poems, first 4 lines and second 4 lines. In the first 4 lines, we can see the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो ये कौन बोलते हैं? This is the writer itself, Robert Frost. The way a crow, किसका है? Crow. और shook down on me. Say shook is the third form of shake. तो ये crow क्या किया है? The crow shake something or shook something. So maybe it move or it fly over the tree or again sit on the branch. तो कैसे शुक किया है उसको एक्सप्लेन किया नहीं है, लेकिन हम लोग वो जो गस करना है, इमेजिन करना है, शायद एक बार उठकर वापस वो सेम ब्रांच में बैठा होगा. और तभी क्या हो गया है? से डस्ट ऑफ स्नो से शुक डाउन ऑन मी.
Me is the writer itself, the poet itself, Robert Frost. Robert Frost का ऊपर क्या गिरा है? Dust of snow. से dust snow का particles गिरा है. से small drops गिरा है, बहुत सारे. से winter season के, तो we can say this is a winter season because snow is there on the tree. तो ये winter season में poet कहाँ बैठा है? अंदर बैठने का जगह पर. winter में enjoy करना, अंदर बैठकर enjoy करने के समय ये बाहर गया है, और enjoy करने के लिए नहीं गया है क्योंकि वो poisonous trees का नीचे बैठा हुआ है. वो कौन बैठा है? और ब्रांच में क्रो बैठा है. तो क्या गिरा है इसको ऊपर? स्नो पार्टिकल्स को गिरा है. That is the first stanza. See, so come to the second stanza. Here, second stanza is talking that he has given my heart a change of mood. Say, कौन? He has. Say, has given my heart. क्या चीज चेंज किया है? गिवन माई हार्ट है, चेंज ऑफ मूड. तो ये जो स्नो गिरा, इसका कंटिन्यूशन है. तो स्नो गिरा है, स्नो पार्टिकल्स गिरा है, वो मेरा मूड को चेंज किया. तो पोएट कौन सा मूड में है? तो हम लोग ट्री बैठना, ये सब कुछ हमको क्या दिखाई देता है? एक सैडेस्ट सिचुएशन में है, बहुत निराश मूड में है. ये निराश हुआ पोएट बैठकर ऐसा सोचने के समय क्या गिरा है? पूरा डस्ट पार्टिकल्स गिरा. बहुत अच्छा लगा पोएट को. तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स कौन गिराया? क्रो ने गिराया, कौवा ने गिराया. तो वो चीज क्या कर दिया है? पोएट का मूड को पूरा चेंज किया. और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड. तो रूड मतलब क्या है? रिग्रेट. तो ये क्या है? सपोज दैट एक दिन का शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम में पोएट बैठा है यहाँ पर, मतलब सुबह से शाम तक वो मूड ऑफ में है, मूड ऑफ में थे. और यहाँ बैठा, अभी मुझे जीने के लिए बिल्कुल मन नहीं, ये सोचकर है. पॉइजनस ट्रीज का नीचे आकर बैठा है. लेकिन बैठते सोचने के समय ये जो बर्फ नहीं, स्नो पार्टिकल्स गिरा है, वो स्नो पार्टिकल्स ये पोएट का मूड पूरा चेंज कर दिया. और बाकी जो जितना टाइम बाकी है एक दिन में, वो पूरा क्या कर दिया है? सेव्ड. से कौन सा सेव किया है? कैसे सेव किया है? खुशी से बदलाया. नहीं है तो जो इट इज कन्वर्ट से दिस डस्ट पार्टिकल्स कन्वर्टेड हिज सैडेस्ट मोमेंट टू अ हैप्पीएस्ट मोमेंट. तो इन्होंने क्या रिग्रेट करते हैं, खुद को क्या सोचते हैं? तो मेरा जो वाई आई एम इन अ सैडेस्ट सिचुएशन, मुझे बिल्कुल ऐसा निराश होना नहीं, क्योंकि जो इतना अच्छा चीज है हमारा, जो प्रकृति में नहीं है तो एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो ये जो यूनिवर्स में कितना अच्छा अच्छा चीज है. ये देखो कौवा ये नीचे गिराया, जो सब कुछ जो स्नो पार्टिकल्स को गिराया, मेरा माइंड तो जो डाइवर्ट हो गया है. तो पोएट क्या कहता है? दो कुछ भी चीज में मैं जो निराश नहीं होना, मेरा आगे जिंदगी, आगे जो जितना टाइम बाकी है, बहुत अच्छा से मैं जीवन बिताएगा. सो दिस इज द 2 stanzas. और नेक्स्ट लेट अस सी द राइम स्कीम. से फर्स्ट लाइन, द वे ए राइम स्कीम मीन्स वर्ड, ये जो एंड वर्ड में नहीं है तो लास्ट वर्ड सिमिलर, first line is similar to the second line with the last word, means that we can say one name. तो यहाँ पर क्या है? एक लाइन का लास्ट वर्ड को हम एक नाम दे दिया, और वो सेम है सेकंड लाइन में भी है, तो हमको सेम नेम दे सकते हैं, लेकिन अलग है तो डिफरेंट है तो हम दूसरा नाम दे सकते हैं. यहाँ पर एक क्रो, ये नाम दे दिया है. Then second, down on me, this is crow's voice is different from me, तो हम बी नाम दे दिया है. और थर्ड लाइन क्या है? स्नो, अगेन स्नो आया है, तो क्रो और स्नो सेम वॉइस के सेम साउंड देते, तो हम दोबारा बी ये दे दिया. और फ्रॉम ए हम लोग ट्री, मी और ट्री सेम वॉइस, सो बी दे दिया है. तो द राइम स्कीम इज ये बी. और इन द सेकंड स्टैंजा ए बी इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में हम सी दे दिया है. से माई हार्ट को हम सी दे दिया. और मूड, मूड इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट, सो डी दे दिया है. और अगेन सम पार्ट, हार्ट एंड पार्ट सेम वॉइस आ रहे, तो हम सी दे दिया है. I had रूड, अगेन मूड और रूड इज सेम, सो डी नाम दे दिया है. तो राइम स्कीम इज ए बी
or AB, CD and CD. That is the rhyme scheme. Now come to the theme. तो ये poem में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतना ब्रीफ एक्सप्लेन कर हमको क्या सिखाने के लिए क्या थीम देते हैं. फर्स्ट इज नेचर इज ब्यूटीफुल एंड इट विल गिव हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. से नेचर हमको जो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन से हम गुजर देते तो भी, और व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट सिचुएशन, नेचर विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस. हैप्पीनेस देने के लिए नेचर हमारे लिए हमेशा रेडी है. सेकंड पॉइंट इज दैट डोंट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग. हम किसी चीज के ऊपर, इवन दो इट इज सिली और स्मॉलेस्ट थिंग, वी कुड नॉट जज द. तो क्या है, हम उस चीज के ऊपर हाँ ऐसा है वैसा है बोलना जरूरत नहीं. तो समटाइम्स ये जो छोटा छोटा थिंग्स हमारा लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं. उसका एग्जाम्पल है क्रो और जो हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, फिर भी क्रो का द्वारा यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा मूड चेंज करते हैं, जो डिफिकल्ट सिचुएशन को, सैडेस्ट सिचुएशन को हैप्पीनेस में बदल जाते हैं. तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना. देन नेक्स्ट वन इज लिटरेरी डिवाइस और पोएटिकल डिवाइसेस. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, तो द पोएम, ओवरऑल द पोएम इज एन एन्चैंटमेंट. एन्चैंटमेंट मीन्स व्हाट? तो देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स. से 2 और 3 लाइन्स में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो हमको वो पोएम कौन सा टाइप ऑफ पोएम माना जाता है? एन्चैंटमेंट पोएम माना जाता है. यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो एक्सेप्ट द लास्ट वर्ड. लास्ट वर्ड के अलावा कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, इसलिए इसको एन्चैंटमेंट कहते हैं. और नेक्स्ट वन इज आयरनी. से व्हाट इज आयरनी? जो बैड थिंग्स को सपोज करते हैं, तो जो हम वो बैड थिंग के द्वारा हमको क्या मिलते हैं? सक्सेस मिलते. से जो जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट, दैट इज आयरनी. यहाँ पर क्रो बैड ओमेन है और हम लोग बैड ओमेन है, तो ये दोनों क्या दे रहे? हैप्पीनेस देते. सो दिस इज आयरनी और सिंबल्स माना जाता है. और नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स व्हाट? रिपीटेड साउंड इन द सेम लाइन और द नियरेस्ट लाइन. यहाँ पर रिपीटेड साउंड है. फर्स्ट स्टैंजा में नहीं, सेकंड स्टैंजा में सेकंड लास्ट लाइन है सेव्ड सम पार्ट. यहाँ पर सेम वॉइस को रिपीट हो रहे, सेव्ड और सम. सो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. और नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स वी नो दैट वन, एक्सेप्ट वॉवल्स, ये ई आई ओ यू का अलावा जो वर्ड्स जो लेटर्स आते हैं वो कॉन्सोनेंट्स माना जाता है. तो वो कॉन्सोनेंट्स में से जो रिपीटेड साउंड से इन बिटवीन और इन द फर्स्ट पार्ट और इन द लास्ट पार्ट. यहाँ पर क्या है? ऑफ लास्ट लाइन देखो, ऑफ डे आई हैड रोड. डी इज रिपीटिंग. यहाँ पर देखो सी डे का डी फर्स्ट लेटर है, वो हैड का लास्ट लेटर रिपीट हो रहे, और रोड का मिडिल में क्या है? अगेन डी रिपीट हो रहे. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. सो दीज आर द पोएटिकल और लिटरेरी डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज एन्चैंटमेंट, सेकंड वन इज आयरनी, एंड थर्ड वन इज एलिट्रेशन, एंड फोर्थ वन इज कॉन्सोनेंट्स. दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस. नेक्स्ट इज question answers. So let me to ask some of the questions. Who is the writer of the poem? Robert Frost. He was the greatest or famous poet. And what is mentioning in the poem? See, 2 things are mentioning, that is bad omens. They are, first one is hemlock tree, that is a poisonous tree, and second one is a black crow. Then what these things, what these negative things bring? The negative things brings happiness in whose life? Robert Frost's life. So this is the poem. Once again, the summary is like that. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये सैडेस्ट सिचुएशन में एक हम लोग ट्री का नीचे बैठा है, और उनका लाइफ में खत्म करने के लिए नहीं है, तो एक पॉइजनस ट्री का वहाँ पर बैठकर तो ऐसा सोचने लगा क्यों लाइफ किस काम के लिए है, तो खत्म करेगा. ये सोचने के समय, सोचकर बैठने के समय 2 बैड ओमेंस, ये जो पॉइजनस ट्रीज में बैठा हुआ क्रो क्या कर दिया है? शुक किया, अपने बॉडी को हिलाया, तभी सारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर गिरा है. तभी वो जो डस्ट पार्टिकल्स को देखकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का माइंड सैडेस्ट मोमेंट को हैप्पीएस्ट मोमेंट में बदल दिया. दैट इज द
total summary of this poem, and from this what we have to learn, कितना नेगेटिव थिंकिंग हमारा लाइफ में आएगा तो भी हम उसको ओवरकम करने के लिए सीखना। से नेगेटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव थिंग्स के साथ, नहीं है तो कुछ ऐसा बैड थिंग्स के साथ कुछ ना कुछ अच्छा थिंग्स भी ज्वाइंट है, नहीं है तो जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम फाइंड आउट करना है और हमारा लाइफ खुशी से बिताना। So that is the poem. You will get some of the question answers and home assignment. Keep on reading and learning and be safe in your home. Thank you.